Yes, friends, now we'll understand the other terminology, that is contingent liability. There is a difference between the provision and contingent liability. First of all, we need to understand what is contingent liability. Contingent liability can be defined as it's a possible obligation. Be careful. Whereas in the provision we find the word the present obligation that arises from the past events and the existence of which will be confirmed only by occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprise, जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है. एग्जाम्पल के तौर पे दे तो जो बिल डिस्काउंट करवा दिए बिजनेस ने, अब इट इज़ येट टू मैच्योर्ड, तो अब मैच्योरिटी पे वो हॉनर्ड हो गए या डिसऑनर्ड, दिस इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. Present obligation that arises from past events but not recognized because it is not probable that an outflow of resources embedding the economic benefit will be required to settle the obligation. जो प्रोविजन में होता था और वो यहाँ पे उसका एब्सेंस है. सेकेंड, रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेड. ये दोनों सबसे बड़े फर्क है फ्रेंड्स. एग्जामिनेशन में आप देखो तो मई 18 या नवंबर 18 के एक अटेम्प्ट में 5 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन था, दैट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंटीजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन. तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि दीज आर द टू रीजन्स. नंबर वन कि इसमें आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं है एंड दैट इज नॉट येट कन्फर्म्ड. नंबर टू, प्रोविजन इज अ प्रेजेंट लायबिलिटी whereas contingent is a possible obligation या possible liability. And third, in case of provision you can estimate the amount with the reliable degree on the basis of past events, on the basis of past data. But in case of contingent liability you don't estimate the amount with the reliable estimation. A contingent liability is a possible obligation arising from past events, may arising in future depending of the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. So contingent liability may also be present obligation that arises from past events, that is part B of the definition. An enterprise should not recognize contingent liability. A contingent liability is required to be disclosed unless possibility of outflow of resources embedding the economic benefit is remote. तो फ्रेंड्स कंटीजेंट लायबिलिटी सिर्फ डिस्क्लोज करनी, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना है. जैसे हम प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करते हैं वैसे कंटीजेंट लायबिलिटी कभी रिकॉग्नाइज नहीं होगी. रिकॉग्नाइज का मतलब इट इज नॉट कंसिडर्ड इन अ मॉनेटरी यूनिट्स. यस, दिस लायबिलिटीज आर continually to determine whether an outflow of resources या outflow है of resourcing embedding the economic benefit has to be probable. It becomes probable that an outflow of future economic benefit will be required for an previously dealt with as a contingent liability. A provision is recognized in a financial statement. अगर हमें पता चल जाए कि जो ये पास्ट इवेंट्स अब उसका तय है कि हमारा ऑब्लिगेशन अब कंफर्म होने वाला है एंड इट इज रिजल्ट इन टू आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक दैट इज कैश फ्लो, सो इन सच अ केस it should be considered that contingent liability should be considered as a provision, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made. Yes, तो moral of the story friends इतना ही है कि जो contingent liability के बाद अब certain हो जाए almost कि अब ये obligation confirmed है by the management, then that contingent liability should be converted into the provisions. Features, सबसे पहले नो रिकग्निशन. बी केयरफुल स्टूडेंट मेकिंग द मिस्टेक ऑफ रिकग्निशन और डिस्क्लोजर. नोट में शो करना दैट इज अ डिस्क्लोजर, पर उसका अमाउंट भी लिखना दैट इज अ रिकग्निशन. एन एंटरप्राइज शुड नॉट रिकग्नाइज द कंटीजेंट लायबिलिटी. बी केयरफुल, ये बार बार ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जाता है. इसका अमाउंट कभी तय नहीं कर पाते हैं तो इट कैन नॉट बी रिकग्नाइज. हाँ, इट कैन बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. डिस्क्लोजर, अ कंटीजेंट लायबिलिटी शुड बी डिस्क्लोज्ड. यस, डिस्क्लोज के लिए इट्स ट्रू. डिस्क्लोज एज अ फुटनोट टू द बैलेंस शीट. एज अ फुटनोट यू कैन शो बट यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज द सेम. पीरियोडिकल रिव्यू. कंटीजेंट लायबिलिटी शुड बी पीरियोडिकली रिव्यूड एट अ रेगुलर इंटरवल. इट शुड बी रिव्यूड कि अब ये कंटीजेंट लायबिलिटी रही है कि नहीं रही. अगर रहे मतलब कंटीजेंट लायबिलिटी इज कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल लायबिलिटी देन इट शुड बी प्रोवाइडेड, बट इफ इट इज still not yet confirmed then it should be shown as a
that a footnote or disclosure. On such a review, if the character will be recognized as a provision, yes, in the character of a contingent liability is found to be changed and there is a probable outflow of resources, then it will be recognized as a provision and treated accordingly. जैसे मैंने अभी बताया कि अगर इसमें कंफर्म हो चुका है इट इज़ रिजल्टेड इनटू द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज तो उसका प्रोविजन करना ज़रूरी है. Impact contingent liability will not affect the profit of the concern as it is not occurred in the accounted in the books. एग्जाम्पल समझते जाते हैं तो बातें आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगी. आउटकम ऑफ लॉ सूट, कोर्ट में केस चल रहा है, अब उसका आउटकम क्या आएगा, हमारे फेवर में आएगा या नहीं, ये हमारे हाथों में नहीं है. इट्स अ कंटीजेंट. क्लेम्स अगेंस्ट द बिजनेस नॉट एक्नोलेज एज अ डेट, जो क्लेम बिजनेस के सामने रखा गया है वो अभी हमने डेट कंसीडर किया नहीं है. गारंटी गिवन इफ द प्रिंसिपल डेटर इज इंसॉल्वेंट, अगर प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट है तो अगर हमने गारंटी दी है तो दैट इज ऑल्सो भी कंसिडर एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी, क्योंकि कल जाके अगर डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वी आर लायबल. अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑफ पार्टली पेड शेयर्स, पार्टली पेड ऑफ शेयर्स पे कभी भी कॉल मंगवा सकती है कंपनी, तो दैट कैन बी अ कंटीजेंट लायबिलिटी. एरियस ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड, क्यूमुलेटिव डिविडेंड, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह में जो एरियर्स अमाउंट है वो आपको पे करने का लायबिलिटी कभी भी क्रिएट हो सकता है. वर्कमैन कंपनसेशन अंडर डिस्प्यूट, वंस अगेन जैसे क्लेम में था वैसे ही, अगर आपका डिस्प्यूट में वर्कर के साथ का कुछ भी कंपनसेशन इश्यू तो वो भी आपके लिए कंटीजेंट लायबिलिटी हो सकता है. अनस्पेसिफाइड बिजनेस रिस्क, सेम वे जो बिजनेस रिस्क कभी स्पेसिफाइड नहीं हुआ है दैट कैन बिकम अ कंटीजेंट लायबिलिटी. लायबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंट, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, आपने अपने डेटर से मिले हुए बिल बैंक में डिस्काउंट करवा दिए पर दे आर येट टू मैच्योर्ड, सो इट कैन बिकम द कंटीजेंट लायबिलिटी, क्योंकि वो मैच्योरिटी पे हॉनर्ड भी हो सकते हैं या डिसऑनर्ड भी हो सकते हैं. Students may note the difference between the recognition and disclosure. Yes, that what I am talking about. A provision should be recognized and also disclosed. However, contingent liability should not be recognized but only disclosed. Recognize का मतलब यहाँ पे सिंपल बोलो तो जिसको मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करना. एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स जिससे आपको पूरी सिचुएशन क्लियरली समझ में आए. मैसर्स एन कंपनी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड MS विंडो सॉफ्टवेयर. Microsoft filed a legal suit against AN company for violation of copyrights. Microsoft also claimed damages for AN company for the producing without its permission. अगर परमिशन के बिना अगर मैसर्स AN कंपनी ने MS विंडो सॉफ्टवेयर को बेचा है. मैसर्स AN कंपनी argued in the court that it has not violated the copyrights. On 31st March 11 this case was pending in the court. अब दोनों डिस्प्यूट में चला गया है और ये कोर्ट के पास है, अब जजमेंट तो आया है नहीं. एनालिसिस करें. द लायबिलिटी ऑफ मैसर्स एन कंपनी मे और मे नॉट अराइज बेस्ड अपॉन द डिसीजन ऑफ द कोर्ट. कोर्ट का डिसीजन पे ये सब डिसाइड होगा. द कोर्ट डिसीजन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय AN कंपनी नॉर कैन बी इन्फ्लुएंस. इफ द कोर्ट डिसाइड्स दैट AN कंपनी हैज़ नॉट वायोलेटेड द कॉपीराइट देन देयर इज नो लायबिलिटी फॉर AN कंपनी. वेरी सिंपल. तो जब तक ये डिस्प्यूट का आउटकम नहीं आता है तब तक इट शुड बी शोन एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी. एक्सप्लेनेशन. द लायबिलिटी of Messrs AN company under the above legal suit is contingent liability and not provision due for the following reason. क्यों इसका प्रोविजन नहीं होना चाहिए, तो उसके रीज़न एक से लेके 4 इस तरह से. सबसे पहले पॉसिबल ऑब्लिगेशन. ऑन 1st March 2011 sufficient evidence is not available that AN company will pay damages to the Microsoft. It is not conclusive whether the court decision will be favorable or unfavorable. हमें पता नहीं है. To AN company, hence no probability of the future liability. तो ये possible obligation हो सकता है. Second, as a result of past event, the above legal suit is due to sale of software by the concerned in the past. Third, existence confirmed by occurrence or non-occurrence of uncertain future events. ये uncertain future events है. जैसे Messrs AN company may or may not have the liability due to copyright violation. This is based on the favorable or unfavorable decision of the court. Court का decision कुछ भी आ सकता है. It may be a favorable or it can be a not favorable. One cannot predict the decision of the court and hence it is uncertain event. And last, not with the control of the enterprise. Control नहीं है AN कंपनी का. Messrs AN company cannot influence the decision of the court.
The decision of the court is not within the control of Messrs A and Company. The court will decide based on the fact of the case, the arguments of the parties and its knowledge. So note, if all the above 4 conditions are satisfied, then liability is in the nature of contingent liability. 4 होने चाहिए. Number 1, possible obligation. Number 2, as a result of past events. Number 3, existence confirmed by occurrence or non-occurrence of future uncertain event and not within the control of business. Hence, in the example, contingent liability due to legal suits pending in the court has to be just disclosed as a footnote to the balance sheet. There is no journal entry required. Only statement describing the liability is given at the end of the balance sheet. तो अभी इस पर कोई प्रोविजन नहीं करना ज़रूरी है क्योंकि चारों टेस्ट से वो गुजर चुका है. नंबर 1, ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है. नंबर 2, इट इज़ बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट्स. नंबर 3, occurrence or non-occurrence is uncertain. And number 4, that is not within the control of the business. So अगर ये चारों टेस्ट से गुजरता है तो वो कंटीजेंट लायबिलिटी ही रहेगा. पर अगर उसमें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट शुरू हो जाए और विच इज रिजल्टेड इनटू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, देन इट शुड बी कंसीडर एज अ प्रोविजन. Yes friends, now we'll try to understand the clear-cut distinction between the provisions and contingent liability. First of all, provision is a present obligation, whereas contingent liability is a possible obligation. You may find the difference between these two words. एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो करंट में ही यू आर लायबल टू पेड ऑफ, बट कंटीजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन विच अराइजेज फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स. और ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ सर्टेन और अनसर्टेन अमाउंट. यहाँ पे अमाउंट सर्टेन या अनसर्टेन हो सकती है. सेकेंड, मेजरमेंट. यस, प्रोविजन कैन बी रिलायबली मेजर्ड बाय यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन. आप प्रोविजन को मेजर कर सकते हो, but in case of contingent liability it cannot be reasonably measured. Be careful. Provisions can be measured with the past records. जैसे एग्जाम्पल दूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो आप पास्ट रिकॉर्ड्स के बेसिस पे पता कर सकते हो कि हर साल डेटर्स में से 5% 10% लोग हमें पेमेंट नहीं कर पाते, तो दे यू कैन क्रिएट अ प्रोविजन फॉर द सेम. बट इन केस ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी आप नहीं कर पाओगे कि हर साल हम कोर्ट में केस जीत ही जाते हैं या हार ही जाते हैं. सो इट इज़ नॉट मेजरेबल. recognition, provision should be recognized in the books of account. It should be shown in the P&L account. It is always recognized with the estimated amount, whereas contingent liability should not be recognized in the books of account. वो कभी recognize नहीं होती. It is just shown as a footnote. Impact on profit. Provision, a known liability is accounted, hence provision से reduce होता है profit reduce करता है वो. Whereas contingent liability is not accounted and it has no impact on the profitability of the period. तो यहाँ पे आप देख सकते हो यस के it reduces the profit, जबकि यहाँ पे impact ही नहीं होती है. It will not unaccounted, so it will not reduce the profitability. आगे disclosure. Provision, for every provision the following should be disclosed. Number 1, opening and closing balances, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट यूज्ड एंड अनयूज्ड अमाउंट रिवर्स ड्यूरिंग द पीरियड. जैसे हम नॉर्मली 11th स्टैंडर्ड से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में करते आ रहे हैं. इन केस ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी इज ओनली डिस्क्लोज, वो सिर्फ डिस्क्लोज होती है बाय वे ऑफ फुट नोट टू द बैलेंस शीट और यस या फिर सेपरेट शेड्यूल में शो होती है और एनेक्सचर में शो होती है, बट इट इज़ नेवर बीन recognize or it will not reduce the profitability. अब बात आती है कंटीजेंट असेट क्या होती है सर. देखो, जैसे किसी एक के लिए कंटीजेंट लायबिलिटी, वो किसी और के लिए कंटीजेंट असेट बनेगी. मीनिंग कंटीजेंट असेट इज अ पॉसिबल असेट that arises from the past events, existence of which will be confirmed only by occurrence or non-occurrence of one or more uncertain events not wholly within the control of the enterprise. yes, इसमें फ़र्क एक ही है, that is a possible asset है. वहाँ पे वर्ड था possible obligation, यहाँ पे वर्ड है possible asset. This is the difference. Treatment, an enterprise should not recognize a contingent asset due to conservatism. yes, future probable gain को anticipate करने जैसा हो जाएगा, so it is not considered due to convention principle.
that is conservatism principle, because this may result into recognition of income that may never be realized. हम वो इनकम को रिकग्नाइज कर देते हैं जो कहीं हमारी हो ही नहीं सकती थी. इम्पैक्ट कंटीजेंट एसेट विल नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज, इट इज़ नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स. वो हमारे प्रॉफिट को कहीं असर नहीं करता है, तो उसको इम्पैक्ट कहीं नहीं करेगा. सर्टेनिटी, इफ द रियलाइजेशन ऑफ इनकम इज सर्टेन then it is not contingent asset and the same shall be recognized in the financial statement. तो अगर वो certain हो जाए तो वो contingent asset नहीं होगा, वो recognize आप कर सकते हो. Disclosure, contingent asset should not be disclosed, very important. जैसे contingent liability disclose करना ज़रूरी है, वैसे contingent asset disclose नहीं करना भी ज़रूरी है in the financial statement, but may be disclosed in the report of approving authority. याद रखो, इस पर भी कई बार शॉर्ट नोट्स और ट्रू एंड फॉल्स पूछे जाते हैं कि कंटीजेंट लायबिलिटी तो फुटनोट के तरह शो होती है, बट कंटीजेंट एसेट कहाँ शो होती है, तो इट शुड बी शोन इन द रिपोर्ट्स ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी. एग्जांपल, अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लीडिंग टू अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, जिससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हो. एक्सपेक्टेड गेन फ्रॉम अ लीगल सूट में अगर आप जीत जाओ तो वो आपके लिए कंटीजेंट असेट है. इंश्योरेंस क्लेम फॉर डैमेज ऑफ अ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी पे आपने इंश्योरेंस क्लेम किया है वो आपके लिए कंटीजेंट असेट हो सकती है. यस, इलस्ट्रेशन फॉर कंटीजेंट असेट, जैसे हमने लायबिलिटी में देखा था वैसे ही देखते हैं. सिचुएशन, टेक अ सेम सिचुएशन एज गिवन अंडर कंटीजेंट लायबिलिटी दैट इज ऑफ मैसर्स एन कंपनी. Microsoft filed a legal suit against AN company for a violation of copyright. Microsoft also claimed damages from AN company for the producing without its permission. Messrs AN company argued the court that it has not violated the copyrights. On 31st March 11, this case is pending at the court. Analysis from the viewpoint of Microsoft के point of view से देखो मैसर्स एन कंपनी के लिए कंटीजेंट लायबिलिटी हो, वही माइक्रोसॉफ्ट के लिए कंटीजेंट असेट बनेगी. इट मे और मे नॉट बी रिसीव कंपनसेशन फ्रॉम मैसर्स एन कंपनी बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ द कोर्ट. द कंपनसेशन इज पॉसिबल गेन फॉर अ माइक्रोसॉफ्ट, और जहाँ माइक्रोसॉफ्ट के लिए ये पॉसिबल गेन है उसके लिए कंटीजेंट असेट बन सकती है. एक्सप्लेनेशन, द कंपनसेशन फ्रॉम मैसर्स एन कंपनी इज अ कंटीजेंट असेट फॉर अ माइक्रोसॉफ्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स. नंबर 1, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है. यस, जैसे कंटीजेंट लायबिलिटी में भी पॉसिबल ऑब्लिगेशन वर्ड है, यहाँ पे भी पॉसिबल ऑब्लिगेशन वर्ड है. ऑन 31st March 11, सफिशिएंट एविडेंस इज नॉट अवेलेबल दैट माइक्रोसॉफ्ट विल रिसीव द मनी फ्रॉम मेसर्स एन कंपनी, हेंस इट इज ओनली अ पॉसिबल असेट. जैसे उसके लिए पॉसिबल लायबिलिटी है, यहाँ पे वो पॉसिबल असेट है. एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, इसमें भी पास्ट इवेंट्स इंक्लूड है. एग्जिस्टेंस कन्फर्म बाय अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स, वो भी फ्यूचर में कोर्ट क्या जजमेंट देगा उस पर होगा. एंड नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज, इवन जैसे मैसर्स एन कंपनी जजमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, जैसे माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं कर सकता है. नोट, इफ ऑल ऑफ द 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन द गेन आर इन द नेचर ऑफ कंटीजेंट असेट. हेंस इन द एग्जाम्पल, कंटीजेंट असेट ड्यू टू लीगल सूट फॉर कॉर्पोरेट वायोलेशन मे बी डिस्क्लोज इन द रिपोर्ट ऑफ, अब ध्यान से देखें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. क्यों सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? बिकॉज एज वी हैव स्टडीड इट शुड बी शोन ओनली इन द रिपोर्ट्स ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी. आप अप्रूविंग अथॉरिटी के रिपोर्ट में ही शो कर सकते हो, तो कंपनी के लिए अप्रूविंग अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं. इट इज़ नॉट अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज इन द बुक्स. तो आप प्रिंसिपल समझ लेते हैं बिटवीन द प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी और असेट. प्रोविजन मैचिंग कंसेप्ट है, इनकम के सामने एक्सपेंस, सिर्फ अमाउंट अनसर्टेन है. कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन है, फ्यूचर प्रोबेबल लॉस को रिकॉर्ड करना. कंटीजेंट लायबिलिटी फुल डिस्क्लोजर फॉलो करता है, इसलिए यू हैव टू शो. और कंटीजेंट एसेट कंजर्वेटिज्म फॉलो करता है, इट इज़ नॉट टू शो. सो कंटीजेंट एसेट और लायबिलिटी का भी फर्क अगर देख ले, यस, तो सबसे पहले कंटीजेंट एसेट इज अ पॉसिबल असेट, तो कंटीजेंट लायबिलिटी भी पॉसिबल ही है, पर यहाँ पे असेट वर्ड है तो यहाँ ऑब्लिगेशन है. रिकग्निशन, हाँ, कंटीजेंट एसेट इज नॉट रिकग्नाइज, दिस इज द वर्ड, whereas contingent liability should be recognized in the balance sheet. recognize का मतलब यहाँ डिस्क्लोज करना है. disclosure, contingent asset should not be disclosed in the balance sheet but may be disclosed in the report of approving authority.
whereas in case of contingent liability should be disclosed, इसको disclose करना ही चाहिए in the balance sheet as a footnote and as a separate schedule. Note पढ़े, contingent situation is a situation in which ultimate outcome, whether gain or loss, one will know only after occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. So both contingent assets and contingent liability arises from past events. Number one, existence will be confirmed only after occurrence or non-occurrence of one or more future uncertain events. Number two, and such event is not wholly within the control of enterprise. Number three, liability or contingent liability, the last part. Liability is a present obligation of an enterprise arises from past events, जबकि ये possible obligation arises from the past events. Example liability के हमें पता है wages, salary, rent, electricity for the last month of the financial year but paid in the first month of the next financial, which can be considered as a outstanding. Contingent liability के काफ़ी example देखे, claims against the enterprise not acknowledged as a debt, guarantee given in respect of third party, liability in respect of bill discounted. Measurement, yes, liability can be measured, yes, it can be measured with the reliable degree, whereas contingent liability cannot be measured with the reasonable degree. Disclosure, liability is disclosed in the liability side of the balance sheet and it is a part of the balance sheet, where contingent liability is not a part of the balance sheet, it is disclosed by way of the footnote to the balance sheet. And last, effect of profit, yes, liability is a known liability provided, so it reduces the profitability. Wages में outstanding wages हम ऐड करते हैं, whereas contingent liability is not provided for, it has no impact on the profit of the period. क्योंकि ये हो या ना हो वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है और इसका मेजर भी नहीं कर सकते. तो फ्रेंड, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. हर एक एंगल से इसको देखा हमने. असेट और कंटीजेंट असेट्स में क्या फ़र्क, लायबिलिटी और कंटीजेंट लायबिलिटी में क्या फ़र्क, कंटीजेंट असेट कंटीजेंट लायबिलिटी में क्या फ़र्क, प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी में क्या फ़र्क. तो ये सब आपके इन डेप्थ नॉलेज के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. सो नाउ विल स्टार्ट विद द क्लास वर्क. यस, वी स्टार्ट विद द क्लास वर्क वेयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1. Contingent asset usually arises from unplanned and unexpected event that give rise to. हमने पढ़ा है कि contingent asset से inflow of cash होता है. So answer is option A, that is possibility of inflow of economic benefit. Contingent liability में outflow होता है पर A और B का सवाल नहीं होता है क्योंकि the question is based on contingent asset. Second, if the inflow of economic benefit is probable, then contingent asset is disclosed. जैसे अभी हमने पढ़ा, it should be only disclosed in the reports of approving authority. So in that case, you have to take answer option B, in the report of approving authority, that is board of directors in case of company and other corresponding approving authority in case of other enterprise. Third, in case of dash, either outflow of resources to settle the obligation is not probable or the amount expected to be paid to settle the obligation cannot, the important word is cannot, be measured with the sufficient liability. अगर आप अमाउंट को मेजर नहीं कर सकते हो then it become the contingent liability. पर आप जैसे फोर्थ में देखोगे तो you will find the exact reverse case. Here the word is present liability. As we have studied, provision is a present liability of uncertain amount which can be measured. The word is which can be measured reliably by using a substantial degree of estimation is termed as a provision, option A. In the financial statement, contingent liability is not recognized, but yes, provision is recognized. यहाँ recognize का मतलब amount के साथ उसको books of account का part बनाना. Theory में friends, provision और contingent liability का distinction आपको लिखना है और liability और contingent liability as I've explained and it is already note given to you, which is asked May 18 and November 19 examination. So friends, यहाँ पे contingent asset और liability unit 5 of theoretical framework chapter 1 gets over. Yes friends, now we are starting with the another unit from the chapter 1, that is theoretical framework, and the unit name is accounting policies. It's a very small unit friends. इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले we will try to understand the meaning of accounting policy. We'll familiarize with the situation under which the selection of different accounting policies required. Grasp the condition where the change in accounting policy can be made and
the consequences arising from such change. तो इट्स अ वेरी स्मॉल बट स्टिल इंटरेस्टिंग टॉपिक. अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन फ्रेंड्स 3 पॉइंट्स पे रहेगा निर्भर. नंबर 1 प्रूडेंस. याद रखें ये कई बार पूछा जाता है. आपका पॉलिसी शुड बी सिलेक्टेड विद ऑल वाइजनेस. सब्सटेंस ओवर फॉर्म. आपको हर एक चीज़ के लीगल फॉर्म पे नहीं जाना है, उसके सब्सटेंस पे ध्यान देना है. एंड मटेरियलिटी दैट इज साइज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. यस, इंट्रोडक्शन. अकाउंटिंग पॉलिसी रिफर्स टू. सबसे पहला स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग सच प्रिंसिपल्स. इसमें 2 बातें याद रखनी है. नंबर 1 इट इज़ अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और उसको अप्लाई करने की मेथड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इज conveyed as a accounting policy adopted by the business in the preparation and presentation of financial statement. Policy are based on various accounting concepts, principles and convention that have already been explained in earlier section. There is no single accounting policy which is applicable to all enterprise in all circumstances. कोई एक कॉमन सेट नहीं है जो हर एक इंडस्ट्री के हर एक कंपनी को एक जैसा फॉलो हो. Depends upon the diversity and the complexity of the nature of the business. It is differ from industry to industry, business to business. Enterprise operate in a diverse and complex environment situation, and so they have to adopt various policies. The choice of specific accounting policy appropriate to the specific circumstances in which the enterprise is operating calls for a considerate जजमेंट बाय द मैनेजमेंट. कौन सी एनवायरनमेंट में कौन से बिजनेस नेचर में किस तरह की पॉलिसी विल बी सुटेबल, इट इज़ हाईली कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस. ICAI has been trying to reduce the number of accepted accounting policy through the guidance notes and accounting standards. जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो पॉलिसी को सिंक्रोनाइज करके एक ही डायरेक्शन में आगे ले जाएगा. इन इट्स कंबाइंड एफर्ट्स विद द गवर्नमेंट and other regulatory agency in the progressive management. Already it has achieved some progress in this respect. काफ़ी सारे accounting standards भी issue हुए to harmonize the different accounting policies and practices adopted by the different business entity. सबसे पहले meaning and need of accounting policies. Accounting policy जैसे मैंने समझा, A refers to specific accounting principles and B methods of applying those principles. जैसे मैं आपको example दूँ, ये प्रूडेंस प्रिंसिपल में वी वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. तो चलो, अब मार्केट प्राइस तो क्लियर, पर कॉस्ट में 2 तरह के गुड्स पड़े हो आपके, जो आपने 500 यूनिट्स 300 में लिए थे और 400 यूनिट 200 में लिए थे. तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है फॉर एग्जांपल 700 यूनिट्स का, तो वो कौन सा है? तो फीफो या लीफो, दैट इज द मेथड, और विच एवर इज लोअर दैट इज अ प्रिंसिपल्स. तो प्रिंसिपल भी फॉलो करने हैं और मेथड्स भी फॉलो करनी है. आप फीफो कर रहे हो, देन इट इज योर पॉलिसी अडोप्टेड बाय द एंटरप्राइज इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट. एग्जाम्पल, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर, दिस इज अ प्रिंसिपल. कॉस्ट कैन बी डिटरमाइंड आइदर फीफो बेसिस और वेटेड एवरेज बेसिस और अदर सुटेबल मेथड. तो ये मेथड्स are the policies. Need for disclosure. Accounting policy should be disclosed in the financial statement due to the following reasons. Number 1, to promote the better understanding of financial statement, इससे financial statement और अच्छे से समझ में आए. Number 2, to provide a meaningful inter-firm comparison आप कर पाओ एक जैसी पॉलिसी हो तो. Number 3, to ensure compliance with law, for example where in case of companies डिस्क्लोजर इज मैंडेटरी, जहाँ मैंडेटरी है काफ़ी सारी कंपनी के लिए, तो यहाँ पे ये अहम रोल प्ले करता है. एंड 4th, टू कंप्लाई विथ ICAI रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी इन डिस्क्लोजर. सभी कंपनियों का एक जैसा ही डिस्क्लोजर हो, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है. अब कैसे चॉइस करें पॉलिसीज़ को? तो नंबर 1, ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग पॉलिसीज़. द डिफरिंग सर्कमस्टेंसेस इन विच एंटरप्राइज ऑपरेट्स in the situation of diverse and complex economic activity of the company has given the rise of acceptability of the alternative accounting principles and methods of applying principle. क्योंकि हर एक बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी अलग है.
decision making. The choice of alternative principles and methods calls for considerable judgment by the management of the enterprise, जिससे आप डिसीजन भी ले सको. रिडक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, जितने ज़्यादा ऑल्टरनेटिव होंगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ेगी, तो ऑल्टरनेटिव्स को एलिमिनेट करना है. वेरियस स्टेटमेंट इशूड बाय ICAI टुगेदर विद द मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट and other regulatory agencies and progressive managements have reduced the number of acceptable alternatives को कम कर दिया गया है, particularly for corporate enterprise. However, the availability of alternative accounting policy can be best be reduced, not eliminated. आप निकाल नहीं सकते, आप उसको reduce कर सकते हो. As a different enterprise operates in a different circumstances. सीधी बात अगर हम बताएं तो आप SLM मेथड से डेप्रिसिएट करते हो WDV, दैट इज योर पॉलिसी, पर ये सबको एक ही जैसे करे और वो भी वो करे जो जस्टिफाइड हो, दैट इज द एजेंडा ऑफ ICAI along with the government. Illustrative list of areas where policies can be framed. नंबर 1 जैसे अभी बताया, डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन, अमोर्टाइजेशन, कन्वर्जन और ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी, उसको ओपनिंग रेट से करें, एवरेज रेट से करें, क्लोजिंग रेट से करें. रिकग्निशन प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो लंबा चलता ही जा रहा है, अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ तो किस तरह से प्रॉफिट को रिकग्नाइज करें. ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, गुडविल की ट्रीटमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स की ट्रीटमेंट और कंटीजेंट लायबिलिटी की ट्रीटमेंट में भी अलग अलग पॉलिसी होती है. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स असेट, इन सब में भी हर एक बिजनेस अपने अपने हिसाब से मेथड करती है और जहाँ जहाँ मेथड है वहाँ वहाँ पॉलिसी हो सकते हैं. प्रिंसिपल्स, कि कोई भी पॉलिसी डिसाइड करो तब क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए. सबसे पहला ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए आपके पॉलिसी के पीछे. The primary consideration in the selection of accounting policy by an enterprise is that the financial statement prepared and presented should be in a view of true and fair view as under. जैसे कि in case of balance sheet of the state of affairs of the enterprise and as on certain date, in case of profit and loss of the profit and loss for the period ended on that date. तो ये सब बातों को ध्यान में रख के आपको अपनी पॉलिसी सिलेक्ट करनी है. टू सिलेक्ट एंड अप्लाई अकाउंटिंग पॉलिसी द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसीडर्ड. जैसे शुरुआत टॉपिक में हमने देखा प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटेरियलिटी. अगर चेंज करना हो आपको अकाउंटिंग पॉलिसी, जैसे हमने कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में देखा था कि एक बार जो मेथड, पॉलिसी या प्रोसीजर आप फॉलो करो, इट शुड बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर. तो चेंज कब कर सकते हो? अकाउंटिंग पॉलिसी हैव टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर. हाउएवर द चेंज कैन बी मेड in the following circumstances. Number 1, if it is required by the statute, कि अगर कायदा के फोर्स के वजह से आपको ये चेंज करना पड़े तो ये आप चेंज कर सकते हो. नंबर 2, टू कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कंप्लायंस के हिसाब से यू हैव टू चेंज. एंड थर्ड, इफ इट इज कंसिडर्ड दैट चेंज वुड बी रिजल्ट इन टू मोर बेटर प्रेजेंटेशन, इससे आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट और बेहतरीन, ट्रू एंड फेयर की और नज़दीक पहुँचे, तो यू कैन चेंज द सेम. अच्छा, अब जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी आप चेंज करते हो या प्रिपेयर करते हो तो यू हैव टू डिस्क्लोज द सेम. Disclosure of accounting policy. All significant accounting policies adopted in the preparation and presentation of financial statement should be disclosed. आपको ये हर एक पॉलिसी को डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है. टू फैसिलिटेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट, जिससे यूज़र को पूरा पता चला कि इसमें कौन सी मेथड से किस तरह से ट्रीटमेंट किया गया है. सेकेंड, प्लेस ऑफ डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर शुड बी अ पार्ट ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट का ही एक पार्ट होना चाहिए जिससे रीडर के नज़रों के सामने रहे वो. इट शुड बी डिस्क्लोज एट वन प्लेस, हर बार एक ही जगह पे होना चाहिए सो दैट यू कैन लोकेट द सेम इंस्टेड ऑफ बीइंग स्कैटर्ड ओवर सेवरल स्टेटमेंट, शेड्यूल्स एंड नोट्स. Change in accounting policies. Change of accounting policy should be disclosed when such change is a material effect on the current period. इस साल पे बहुत सारा इफेक्ट देता हो, जैसे कि आपने SLM से WDV मेथड में डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया तो इससे इस साल के प्रॉफिटेबिलिटी में क्या फ़र्क है, दैट यू हैव टू डिस्क्लोज. व्हेन सच चेंज इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑफ द लेटर पीरियड को भी अगर वो अब आपके कमिंग ईयर्स में भी इसकी क्या क्या असर आ सकती है, दैट यू हैव टू डिस्क्लोज. नेक्स्ट, मैनर
of disclosure of change in accounting policies effect in current period. So impact of the change in that is change in profit and loss account and balance sheet items of the current period should be quantified to the extent ascertainable. अगर आपने मेथड चेंज किया फीफो से लीफो तो इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में और बैलेंस शीट में क्या क्या फ़र्क आया वो आपको क्वांटिफाइड करना पड़ेगा. वेयर क्वांटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल आइदर होली और इन पार्ट द फैक्ट ऑफ सच चेंज हैविंग मटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज. तो आपको ये इतना तो जरूर लिखना है कि ये चेंज के वजह से देयर विल बी अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द कंपनीज परफॉर्मेंस एंड पोजीशन. Expected effect on the later period में the fact of such change and the fact that is likely to have effect in the later period should be appropriately disclosed. उसको सही वे में डिस्क्लोज होना ज़रूरी है. इन द पीरियड इन विच द चेंज इज अडोप्टेड, जो पीरियड में ये चेंज आप अडोप्ट कर रहे हो उसमें ये डिस्क्लोज कर दे. डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग अजम्पशंस. यस, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस लाइक गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल इफ फॉलोड नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज. तो वो डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है. Even if one of them is not followed, the fact should be disclosed. पर अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, जैसे कि जॉइंट वेंचर केस में वी आर नॉट फॉलोइंग गोइंग कंसर्न, देन इट शुड बी डिस्क्लोज. डिस्क्लोजर इज नॉट अ रेमेडी. आप डिस्क्लोज करके अपनी जिम्मेदारी में से बाहर नहीं निकल सकते. डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी और अ चेंज देयरिन कैन नॉट बी अ रेमेडी रॉन्ग और इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ द आइटम इन द अकाउंट्स. कुछ गलत आपने ट्रीटमेंट कर दिया फिर आप इसको डिस्क्लोज कर दो तो इससे कुछ आपका रेक्टिफिकेशन नहीं होने वाला है. तो यू टू बी वेरी केयरफुल वाइल मेकिंग द एंट्री फॉर द अकाउंटिंग पॉलिसीज. आगे देखें तो वेरी क्लोज टर्म इज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. जैसे कि डेप्रिसिएशन में आप SLM करो या WDV दैट इज़ अ पॉलिसी, पर डेप्रिसिएशन 10% करें या 15% दैट इज़ एन एस्टिमेट. मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. Accounting estimates means approximation of the amount of an item in the absence of precise means of measurement. अगर उसका precise means of measurement नहीं है तो you have to approximate the same. Example, जैसे अभी मैंने बोला depreciation in this case, rate of depreciation is estimated based on the useful life of the asset. Other example, reduction in the value of inventory, debtors to their estimated realizable value, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सब हम एस्टिमेट्स करके अमाउंट डिराइव करते हैं. अक्रूड रेवेन्यू, प्रोविजन फॉर लॉस फ्रॉम अ लॉ सूट, प्रोविजन टू मीट द वारंटी क्लेम्स. ज़्यादातर प्रोविजन में अमाउंट अनसर्टेन होती है तो वहाँ पे हम एस्टिमेट्स ही करते हैं. नेक्स्ट इज अमोटाइजेशन ऑफ सर्टेन आइटम्स लाइक गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसको कितने सालों में राइट ऑफ किया जाए तो वो हमारे प्योर एस्टिमेट पे होगा. इंश्योरेंस लायबिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग क्लेम्स, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर. एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेजुएटी, कितने सालों में इसको राइट ऑफ करना. लॉसेस ऑन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्रोग्रेस. ये सब बातों पे आपका एस्टिमेट, अ प्रूडेंट एस्टिमेट प्लेज अ बिग रोल. तो फ़र्क क्या है बिटवीन द अकाउंटिंग एजम्पशन एंड अकाउंटिंग पॉलिसी. सबसे पहले कितने अकाउंटिंग एजम्पशंस है तो 3, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल. जबकि अकाउंटिंग पॉलिसी की कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है. डिस्क्लोजर नॉट रिक्वायर्ड, कहीं एजम्पशन में डिस्क्लोजर ज़रूरत नहीं है, ये माना ही जाएगा कि ये फॉलो हो रहा है. बट यस, इन केस ऑफ पॉलिसी नीड टू बी डिस्क्लोज. इफ़ नॉट फॉलोड और चेंज्ड द फैक्ट टू बी डिस्क्लोज. अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको डिस्क्लोज करना है. इन फैक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अलॉन्ग विद द इफेक्ट, वो आपको चेंज के साथ डिस्क्लोज करना पड़ेगा. एंड चॉइस, अजम्पशन में कोई चॉइस नहीं है कि चलो मैं ऐसा सोचूं कि बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है, मैं ऐसा सोचूं कि अक्रूवल बेसिस फॉलो नहीं हो रहा है. तो नो फ्रेंड्स, ये मैंडेटरी है. यस, इन केस ऑफ पॉलिसी द एंट्री एज एन एंटिटी एज एन ऑप्शन टू चेंज द सेम. आगे देखें तो अकाउंटिंग एस्टिमेट और पॉलिसी में क्या फ़र्क है. तो जैसे हमने अभी देखा मीनिंग, अकाउंटिंग एस्टिमेट रिफर्स टू फिनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स which cannot be measured with the precision but can be estimated based on the informed judgment पे हम estimate करते हैं. Whereas policy refers to accounting principles and methods of applying that principles. Frequency, change in accounting estimate is a routine matter. आपका routine purpose है, ये आप frequently change कर सकते हो. जबकि accounting policy is infrequent in nature.
एग्जाम्पल की बात करें, एन एस्टिमेट ऑफ बैड डेट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एट द सब्सिक्वेंट डेट इंसॉल्वेंसी ऑफ अ डेटर नोन आफ्टरवर्ड्स। और इन केस ऑफ आप यहाँ देखो तो a permanent change in the basis of accounting in the consent area. For example, accounting policy for charging depreciation may be changed from SLM to WDV, but ये frequent नहीं हो सकता है. Causes, reason, change in accounting estimate arises. Number 1, change in circumstances on which the estimated was based. जो estimate का base था वही change हो गया. Availability of new information, जबकि यहाँ पे चेंज का बेस जैसे हमने बताया टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, टू ओबे गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड फॉर अ मोर बेटर प्रेजेंटेशन. यस, मटेरियलिटी, द अकाउंटिंग पिक्चर मे नॉट गेट सब्सटेंशियली ऑल्टर्ड बाय द चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट. एस्टिमेट आपने 5 का 10% किया तो इतना बड़ा ड्रास्टिक परफॉर्मेंस या पोजीशन पे फर्क नहीं पड़ेगा. बट यस, a change in accounting policy generally has a far reaching material and long term effect. पर आप SLM से WDV में जा रहे हो तो वो सालों तक के आपके डेप्रीसिएशन के अमाउंट को और प्रॉफिटेबिलिटी को असर करेगा. डिस्क्लोजर, द नेचर एंड द अमाउंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट विच हैज़ अ मटेरियल इफेक्ट इन द करंट पीरियड और एक्सपेक्टेड मटेरियल इफेक्ट इन द फ्यूचर पीरियड वही डिस्क्लोज करना है. जबकि a change in accounting policy which has a material effect should be disclosed along with the impact of the adjustment resulting from that change in the current period और financial period. यहाँ पे आप देख सकते हो कि चेंज तभी, ये डिस्क्लोज तभी करना है जब मटेरियल इफेक्ट हो उसकी, जबकि पॉलिसी इज ऑलवेज कम आउट विद द मटेरियल इफेक्ट. सो हियर यू हैव टू डिस्क्लोज इफ यू मेक एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी. तो फ्रेंड्स यहाँ पे टॉपिक का बेसिक नंबर 1 स्मॉल टॉपिक है अकाउंटिंग पॉलिसी का डेफिनेशन. सिलेक्शन के टाइम पे क्या क्या आपको याद रखना पड़ेगा, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में आप पॉलिसी चेंज कर सकते हो, कौन कौन से एरिया है जहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रेम हो सकती है, अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या चीज़ है, अकाउंटिंग एस्टिमेट और पॉलिसी में क्या फ़र्क है जो हमने लास्ट में देखा, और अकाउंटिंग एजम्पशन और अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या फ़र्क है वो आपको पढ़ना ज़रूरी है. Now we'll move to the MCQ of the topic. A change in accounting policy is justified जब to comply with accounting standards to ensure more appropriate presentation and C, that is all of the above. Accounting policy of inventories of Zeta Limited state that inventories are valued at the lower of cost determined on weighted average basis or net realizable value, which accounting principle followed. तो नेचुरली फ्रेंड्स इसमें प्रूडेंस फॉलो हो रहा है कि आपने क्लोजिंग स्टॉक को जो कम है वो वैल्यू से लिया है. द एरियाज वेयर इन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी फ्रेम्ड. डेप्रिसिएशन में हो सकता है, यस, इन्वेंट्री में फीफो लीफो, डेप्रिसिएशन में SLM WDV. तो आंसर इज ऑप्शन सी. सिलेक्शन ऑफ इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर गलत अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर ली तो ओवरस्टेट होगा, अंडरस्टेट या ओवरस्टेट होगा, या ओवरस्टेट ऑफ द परफॉर्मेंस होगा. तो दोनों बातें हो सकती है, ओवरस्टेट भी हो सकता है, अंडरस्टेट भी हो सकता है. आंसर ऑप्शन बी. अकाउंटिंग पॉलिसी रिफर्स टू अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स ऑफ अप्लाइंग प्रिंसिपल, बोथ ए एंड बी. तो यहाँ पे आंसर आएगा बोथ ए एंड बी जो हमने डेफिनेशन में देखा. होमवर्क में फ्रेंड्स आपको डिफाइन द अकाउंटिंग पॉलिसी इन ब्रीफ जैसे हमने देखा आगे, इन फ्यू एरियाज जहाँ जहाँ अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री से लेके काफ़ी सारे. अगर चेंज करना हो तो कौन कौन से रीजंस होंगे जो जस्टिफाई करेंगे इस चेंज को, जो हमने आपको समझाया. नंबर 1 टू ओबे गवर्नमेंट ऑर्डर्स, नंबर 2 टू कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड नंबर 3 फॉर अ बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट. तो फ्रेंड्स अकाउंटिंग पॉलिसी, अ वेरी स्मॉल टॉपिक which can be asked even in the true and false or maybe in the short notes, is over here. That is the chapter 1 unit number 6. Yes friends, now we'll move to the unit 7 of the chapter 1. Chapter 1 having total 9 units. We have done with the 1 to 6. The 7th is the very interesting. It's once again a very small but still a new one that you might not studied even in your schooling. यूनिट 7 इज अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन. अकाउंटिंग मेजर करने का एक बड़ा ब्रांच है जो काफ़ी सारे वैल्यूएशन प्रिंसिपल भी देता है, एंड द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर द पार्ट ऑफ दिस टॉपिक.
सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम, वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट, इट्स बेसिक एलिमेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स है इस मेजरमेंट के, नो हाउ फार अकाउंटिंग इज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन इफ कंसिडर फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के बेसिक एलिमेंट के साथ किस तरह से अकाउंट जुड़ता है, डिस्टिंग्विश द मेजरमेंट फ्रॉम वैल्यूएशन, वैल्यूएशन और मेजरमेंट में क्या फ़र्क है, learn the different measurement bases, namely historical cost, number one, realizable value, present value, and one more is the current cost. Understand the measurement bases which can give the objective valuation to the transaction and events. And last is understand that the traditional accounting system mostly use the historical cost as a measurement base, although in the some cases other measurement bases are also used. इन डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट मेजरमेंट बेसिस लिए जाते हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कोई भी मेजरमेंट के तीन एलिमेंट होते हैं। एक सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स, नंबर टू सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स और स्केल, नंबर थ्री इवेल्युएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ द मेजरमेंट स्टैंडर्ड और स्केल। एग्जांपल दूँ, बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, परफॉर्मेंस कितना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम स्केल क्या लेते हैं, दैट इज मेजरमेंट स्केल, दैट इज मनी, और डायमेंशन क्या होगा मनी का, दैट इज मेजरमेंट स्केल का, दैट वैल्यू ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। फ्रेंड्स, हर एक मेजरमेंट में ये तीन क्राइटेरिया यू नीड टू टेकन केयर ऑफ, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द मॉड्यूल एंड यू हैव टू लर्न इट परफेक्टली। ओके, चार मेजरमेंट के वैल्यूएशन प्रिंसिपल है। नंबर वन हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, नंबर टू करंट कॉस्ट, नंबर थ्री रियलाइजेबल वैल्यू, एंड नंबर फोर इज प्रेजेंट वैल्यू। ये चार वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स है जिसके मद्देनज़र पूरा टॉपिक आगे बढ़ेगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं। मेजरमेंट इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, कोई भी दुनिया की कोई भी फील्ड है उसमें मेजरमेंट ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर आपका बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है, टेलर आपके कपड़ों का मेज़रमेंट करता है, वैसे अकाउंटिंग क्या मेज़र करता है, प्राइमरीली ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे हमने अभी समझाया कि मनी में ये सब मेज़र होते हैं। एनी मेजरमेंट डिसिप्लिन डील्स विद द बेसिक थ्री एलिमेंट्स, दैट इज एज ए एक्सप्लेन यू, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आपका इसके पीछे का गोल क्या है, सिलेक्शन ऑफ स्केल, इस ये ऑब्जेक्ट आपने जो तय किया है वो मेज़र करने का स्केल क्या रहेगा, एंड इवेल्यूएशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द स्केल, ये स्केल के डायमेंशन क्या रहेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन अकाउंटिंग, नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन हाउएवर सिग्निफिकेंट आर नॉट कंसीडर। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, टू नो द परफॉर्मेंस, तो उसके लिए हम कौन से ट्रांजेक्शन लेंगे, विच आर द फिनेंशियल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। सिलेक्शन ऑफ स्केल टू बी यूज, द रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री इज यूज्ड एज अ बेसिस फॉर मनी मेजरमेंट इन अकाउंटिंग, रूलिंग कंट्री की जो करेंसी है वो हम यूज़ करेंगे। हाउएवर मनी इज़ नॉट अ स्टेबल स्केल हैविंग यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, रुपी हर एक कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड नहीं चलता है और उसका वैल्यू भी स्टेबल नहीं है। एक्सचेंज रेट्स बिटवीन द डिफरेंट करेंसीज आर ऑल्सो नॉट कॉन्स्टेंट, डॉलर और रुपी के बीच का एक्सचेंज रेट इज मूविंग नाउ ऑन इवन अ हार्ली बेसिस। थर्ड, इवेल्युएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्केल, money as a valuation base loses its value over a period of time, hence it is not stable in the dimension, तो उसका डायमेंशन भी देखना पड़ेगा आपके स्केल का। तो कंक्लूजन क्या है इस बातों से, अकाउंटिंग इज नॉट एग्जैक्ट मेजरमेंट डिसिप्लिन बिकॉज अकाउंटिंग मेजर्स इंफॉर्मेशन मोस्टली इन मनी टर्म्स, यहाँ पे स्केल है वो मनी है, विच इज़ नॉट अ स्टेबल स्केल, 50 साल पहले जो मनी का वैल्यू था वो आज नहीं है, नॉट हैविंग यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब रुपी या डॉलर पूरे वर्ल्ड में एक ही करेंसी सभी जगह नहीं चलती, एंड नॉट स्टेबल इन डायमेंशन फॉर कंपैरिजन ओवर टाइम, उसका वैल्यू भी चेंज होता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो दीज आर द क्रिटिक्स अबाउट द मेजरमेंट। अब हम चार टाइप्स को देखते हैं विच आर द मेन पार्ट ऑफ द टॉपिक। नंबर वन, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट, कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड और फेयर वैल्यू ऑफ द असेट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन।
फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है क्लास में, ये प्रोजेक्टर आज से 10 साल पहले हमने खरीदा था 15,000 में, तो वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी. इफ़ आई रीड द वर्ड्स अगेन, कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड और फेयर वैल्यू ऑफ द असेट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज द एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन. क्या उसकी वैल्यू थी, दैट इज टू बी कंसिडर एज अ हिस्टोरिकल कॉस्ट. लायबिलिटी में यही बातों को अगर देखें तो proceeds received in exchange for the obligation or the amount of cash or cash equivalent expected to be paid to satisfy it in the normal course of business. नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये लायबिलिटी को पे करने के लिए कितना कैश लगेगा, दैट इज कॉल्ड अ हिस्टोरिकल कॉस्ट. सेकेंड, करंट कॉस्ट. कैश और कैश इक्विवेलेंट विच इज टू बी पेड इफ द सेम और एन इक्विवेलेंट एसेट वाज एक्वायर्ड करंटली. आज खरीदने जाओ, परचेज एंगल लेना पड़ेगा, सबसे अहम वर्ड परचेज एंगल. आज यही प्रोजेक्टर खरीदने जाओ, 10 साल पहले जो खरीदा था वो एग्जांपल में हमने लिया 15,000, आज अगर वो खरीदने जाते हो तो वो मिलता है 40,000 में, तो वो उसकी करंट कॉस्ट हो गई. लायबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अनडिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन करंटली. आज ये ऑब्लिगेशन पे करने जाओ जिसमें अनडिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो, तो दैट विल बी अ करंट कॉस्ट. थर्ड, रियलाइजेबल वैल्यू. इसमें सेल एंगल होगा. जैसे प्रोजेक्टर आज से 10 साल पहले खरीदा था 15,000 में, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है. आज खरीदने जाओ और वो 40,000 में मिलता है तो वो करंट कॉस्ट है. पर आज हमारे पास जो पड़ा हुआ प्रोजेक्टर बेचने जाओ तो 3,000 में बिकता है, तो वो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है. कैश और कैश इक्विवेलेंट दैट कुड बी करंटली बी ऑब्टेन बाय सेलिंग द असेट इन ऑर्डिनरी डिस्पोजेबल. यहाँ पे आपको सेल एंगल लेना है, दैट इज द रियलाइजेबल वैल्यू जो हम नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक में NRV के फॉर्म से जानते हैं. इन केस ऑफ लायबिलिटी, अनडिस्काउंटेड अमाउंट्स ऑफ कैश. बार बार आपको एक वर्ड मिलेगा दैट इज अनडिस्काउंटेड, तो यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं देखना है. कैश और कैश इक्विवेलेंट दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट विल बी कंसिडर एज अ नेट रियलाइजेबल वैल्यू. लास्ट इज अ प्रेजेंट वैल्यू. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. प्रेजेंट डिस्काउंटेड, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज डिस्काउंटेड. यहाँ पे फ्रेंड्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है एंड दैट इज डिस्काउंट फैक्टर कम्स इनटू द पिक्चर. प्रेजेंट डिस्काउंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज एक्सपेक्टेड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम सच असेट ओवर अ यूजफुल लाइफ. इसके यूजफुल लाइफ से जो हमें हर साल उसमें से इनफ्लो ऑफ कैश मिलेगा, उसका डिस्काउंटेड वैल्यू निकाले तो इट विल बी अ प्रेजेंट वैल्यू विच इज ऑल्सो टॉट इन द मैथमेटिक्स. फ्यूचर वैल्यू और उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट इज अ प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कैश, बी केयरफुल, यहाँ पे अनडिस्काउंटेड वर्ड नहीं है, द वर्ड इज डिस्काउंटेड. वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड टू बी रिक्वायर्ड टू सेटल द लायबिलिटीज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर ये लायबिलिटी पे करनी हो तो कितना लगेगा, दैट इज अ प्रेजेंट वैल्यू. Different measurement bases like historical cost, current cost, net realizable value, present value are used according to the suitability. जो जो सिचुएशन में जो लगेगा उस तरह से ये अप्लाई होता जाएगा फ्रेंड्स. The situation needs to depict the true and fair value of the financial position of the entity. To derive the true and financial position, इसका जिस तरह से it can give a best ट्रू एंड फेयर पिक्चर, उस तरह से ये यूज़ होता जाएगा. शुरू करते हैं इसमें क्लास वर्क. सबसे पहले मेजरमेंट डिसिप्लिन डील्स विथ नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ स्केल बोथ ए एंड बी. यस, दोनों. जैसे हमने देखा नंबर 1 आपका ऑब्जेक्ट, नंबर 2 सिलेक्शन ऑफ स्केल एंड नंबर 3 डायमेंशन ऑफ स्केल. ऑल द फॉलोइंग आर द वैल्यूएशन प्रिंसिपल. हिस्टोरिकल कॉस्ट है हाँ, प्रेजेंट वैल्यू है हाँ, बट यस फ्यूचर वैल्यू इज नॉट अ part of the valuation principle. Book value of machinery on 31st March 16 is 10 lakhs. Market value on 16 if sold 11 lakh. As on 31st 16 if the company values machine at 11 lakh, that is market value पे, which of the following valuation principle is being followed? Naturally इसका हमने जो realizable value है वो consider किया, so we'll get the option C. मोहन परचेज ऑफ मशीनरी अमाउंटिंग 10 lakhs ऑन 1st April 2011. जब खरीदा तब उसका वैल्यू 10 लाख था.
ऑन 31st March 16 सिमिलर मशीन कुड बी परचेज फॉर 20 lakhs। आज 2016 में ये ऐसा ही मशीन खरीदा जाए तो वो 20 लाख में मिलता है, बट द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1/4/2001 जो हमने खरीदा था आज बेचने जाए तो 15 लाख में बिकता है। द प्रेजेंट डिस्काउंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नेट कैश इनफ्लोज दैट मशीनरी वॉज एक्सपेक्टेड टू जनरेट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वॉज कैलकुलेटेड 12 lakhs। तो आपको 4 आंसर देने हैं। नंबर 1, करंट कॉस्ट आज खरीदने जाओ तो वो कितने में मिलता है? 20 लाख। ऑप्शन बी। प्रेजेंट वैल्यू दैट इज कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी 12 lakhs। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो रेट में हमने खरीदा था दैट इज 10 lakhs। और रियलाइजेबल वैल्यू आज बेचने जाओ तो इट कैन बी सोल्ड एट 15 lakhs। सो दीज आर द 4 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉमन क्वेश्चन। डिफाइन द मेजरमेंट इन ब्रीफ, जैसे हमने समझा है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट जो 3 है। नंबर 1 ऑब्जेक्ट, नंबर 2 स्केल एंड नंबर 3 डायमेंशन ऑफ स्केल। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द ऑल्टरनेटिव मेजरमेंट बेसिस 4 है। हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू। फॉर द डिटरमाइनिंग द वैल्यू एट विच द एलिमेंट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमने आपको समझाया फ्रेंड्स। अ स्मॉल बट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच कम आउट विद द अदर valuation basis. Traditionally historical cost is the only, but nowadays with the passage of time and new changes in the world of finance, there are different bases of valuations are also adopted from current cost to realizable value to the present value also. So we wrap up the unit number 7 over here, that is the valuation principles. तो यहाँ पे यूनिट 7 विच इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट वैल्यूएशन प्रिंसिपल खत्म करते हैं। यस फ्रेंड, द यूनिट 8 दैट इज चैप्टर 1 इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। द वर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज अ वेरी वाइड प्रेजेंस इन द एंटायर ICAI syllabus of foundation to final, but majorly it is having a presence at the intermediate level. At the level of foundation इसका इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, व्हाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, व्हाट आर द एडवांटेजेस, लिमिटेशन, क्यों जन्म हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, एटसेट्रा। सो इंट्रोडक्टरी पार्ट इज देयर एट द फाउंडेशन लेवल एंड डिटेल पार्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूड बाय ICAI आर टू बी टॉट एट द इंटरमीडिएट लेवल। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें? अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इश्यूएंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्यों ये इश्यू हुए। ग्राफ द ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन, ये 3 एस्पेक्ट एट द फाउंडेशन लेवल यू हैव टू स्टडी। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 उसके क्या बेनिफिट है और क्या लिमिटेशंस है। लर्न द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ ICAI, किस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं उसका पूरा सेटअप समझेंगे। एंड फेमिलियर विद द लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, जितना भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लिस्ट है ये लिस्ट कभी पूछा नहीं जाएगा, नीचे ही नोट लिखा है इसी मॉड्यूल में कि दिस इज जस्ट फॉर अ रेफरेंस एंड नॉलेज, इट इज़ गिवन टू यू। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके साथ डील करता है? डील्स विद द इश्यू ऑफ नंबर 1 रिकग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन, इसको किस तरह से रिकग्नाइज करना। नंबर 2 मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन और इवेंट्स, इसको किस तरह से मेजर करना। जैसे हमने पढ़ा इन द यूनिट 7 कि हर एक बिजनेस एंटिटी अपने अलग अलग वे से मेजरमेंट करता है, तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना। स्टैंडर्ड शोज द यूनिफॉर्मिटी, स्टैंडर्ड शोज द रिलायबिलिटी। प्रेजेंटेशन, उसका किस तरह से प्रेजेंटेशन करना। एंड नंबर 4 दैट इज ऑल्सो डिस्क्लोजर। तो 4 एस्पेक्ट इसमें उभर के आया, एक रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ये 4 बातों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में देखा जाएगा। फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, कौन कौन से एरिया में डाइवर्सिटी है जहाँ जरूरी है। कंस्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप, उसका एक स्टडी ग्रुप बनाया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एंड इट्स सर्कुलेशन, इसका एक ड्राफ्ट पहले बनाया जाएगा और दैट इज सर्कुलेटेड अमंग द मेंबर्स। असर्टेनमेंट ऑफ द व्यूज ऑफ द डिफरेंट बॉडीज ऑन अ ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट पे हर एक बॉडी अपने अपनी राय देगी, अपने सुझाव देगी। फाइनलाइजेशन ऑफ द ड्राफ्ट, ये फाइनल होगा ड्राफ्ट। कमेंट्स एंड रिव्यू ऑन द एक्सपोजर ड्राफ्ट, जिसको ED कहा जाता है, और उसमें अगर जो जो ज़रूरत पड़े मॉडिफिकेशन, ये ड्राफ्ट प्रपोजल की, इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू किए जाते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़े।
Accounting is a language of a business and communicates the financial result of the enterprise to the various stakeholders by means of financial statement. We studied the same. If the financial accounting process is not properly regulated, and there is a possibility of financial statement being the misleading हो जाए, tremendous and misleading, tedious and providing a distorted picture of the business. अगर गलत पिक्चर दिखाना शुरू कर दे, then it can violate its true and fair view. To ensure the transparency, consistency and comparability, adequacy and reliability of the financial reporting, accounting standard का जन्म हुआ, उद्भव हुआ. It is essential to standardize the accounting principles and policies. हर एक बिजनेसमैन अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग मेजरमेंट करता था, डिस्क्लोज करता था, रिकॉग्नाइज करता था, उसके पॉलिसी अलग अलग होते थे. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी. आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर the treatment of the transaction and events so that financial statement of different enterprise becomes comparable. इससे आप कोई भी financial statement को उठाओ, you can make a comparison between the two companies. Accounting standard का meaning, सबसे पहले accounting standard represents the statement issued by Institute of Chartered Accountants of India, जिसको हम ICAI बोलते हैं, which contain basic principles for accounting, disclosure for specific items in the financial statement. ये सब बातों का वो take care. Applicability, they shall apply to the general purpose of financial statement and other financial reporting. Background, at the international level, these accounting standards are called International Accounting Standard, IAS, or International Financial Reporting Standard, which is also known as IFRS. Such standards are set up by the International Financial Standard Committee, that is IASC. प्रोसीजर, जैसे मैंने पहले समझाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर्म किया जाता है ऑफ द ICAI, रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यू ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. किस तरह से इसकी प्रोसीजर है वो पहले समझे. सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर्मुलेट किया जाता है. वो क्या करता है, तो सबसे पहले डिटरमाइन करता है कि एरियाज वेयर एज AS आर रिक्वायर्ड टू बी रिफर्ड टू द स्टडी ग्रुप में ये रखा जाएगा. थोड़ा इमेज ब्लर है, बट इफ़ यू हैव अ बुक देन यू कैन रीड विथ मी. इसके बाद प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट और डिस्कशन रेडी किया जाता है कि इसमें बेसिक क्या क्या पॉइंट्स कवर किए जाएंगे. फिर इस ड्राफ्ट को डिस्कशन के लिए रखा जाता है, दैट इज स्पेसिफाइड बॉडीज़ के सामने. जो ड्राफ्ट बनाता है वो स्टडी ग्रुप्स बनाता है. इसके बाद आता है दैट इज फाइनलाइज द एक्सपोजर ऑफ ड्राफ्ट, दैट इज कमेंट्स. जो उसके कमेंट्स है वो की जाती है, एंड दैट इज डन बाय द मेंबर्स ऑफ ICAI, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर अप्रोप्रिएट इंटरेस्टेड ग्रुप्स एंड अदर स्पेसिफाइड बॉडीज इस पे अपनी कमेंट्स रखते हैं. ओके, यस. जो ये सर्कुलेट होता है वो दो जगह होता है, एक तो स्पेसिफाइड बॉडीज़ में भी सर्कुलेट होता है और दैट इज़ काउंसिल ऑफ ICAI में भी सर्कुलेट होता है. पांचवा, ये सब कमेंट्स के बाद कमेंट्स को कंसीडर करके एक फाइनल ड्राफ्ट रेडी किया जाता है, विच इज़ गिवन टू द काउंसिल ऑफ ICAI, और काउंसिल ऑफ ICAI अल्टीमेटली डिस्कस द फाइनल ड्राफ्ट एंड मॉडिफाई एंड रिक्वायर्ड जिस तरह से लगे, और इसको इश्यू करते हैं एज एन AS, जिसको हम मैंडेटरी AS के नाम पे बाद में फॉलो करते हैं. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये स्टडी ग्रुप में फॉर द बेसिक असेसमेंट के लिए रखा जाता है. फिर इसमें प्राइमरी डिस्कशन होता है, फिर कमेंट्स आते हैं, ये कमेंट्स को भी अप्रेजल किया जाता है. ये अप्रेजल के बाद फाइनल ड्राफ्ट रेडी करके दैट इज सबमिटेड टू द काउंसिल ऑफ ICAI, और बाद में वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉर्म बनता है. क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, सबसे पहले हम देखेंगे दैट इज द एडवांटेजेस, बाद में अलग से डिसएडवांटेज देखेंगे. सबसे पहले टू प्रमोट द डिसेमिनेशन, दैट इज the gap between the policy adopted by the different entities of a timely and useful financial information to all stakeholders having the interest in the company's
इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ये हटा देता है और वो डिसेमिनेशन को निकाल देता है। टू रिड्यूस और एलिमिनेट इफ पॉसिबल कंफ्यूजिंग वेरिएशंस इन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यूज टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट, जितने भी कंफ्यूजिंग वेरिएशंस होते हैं वो सब ये निकाल देता है। टू एंश्योर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जहाँ जहाँ जरूरत पड़े वो प्रिंसिपल को डिस्क्लोज करना। एंड ट्रीटमेंट वेयर द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आर नॉट स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आर नॉट स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज, जहाँ पे स्टैट्यूटरी वो जरूरत ना हो पर फिर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक इट मोर एनलार्ज इन दैट केस। To facilitate the comparison of financial statement of various enterprise in the same country or a different countries, this is most important। हर एक बिजनेस अपने अलग अलग वे से पॉलिसी के अनुसार अकाउंटिंग करता है, तो ये सबको हार्मोनाइज करना, इसको कंपेरेबल करना, इसके बीच का जितना भी डाइवर्सिटी है वो सब हटा देना और समझ लो विविधता में एकता लाने का काम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करते हैं। हाँ, उसके लिमिटेशन भी है। सबसे पहले, where there are alternative solution of specific accounting problems, each of these solution may also be appropriate on the basis of sound arguments। A standard which insists of one particular solution may be unduly। ये सबके सामने एक ही पॉलिसी या एक ही स्टैंडर्ड या एक ही मेथडोलॉजी रखना इज ऑलवेज नॉट एक्सेप्टेड, और इतने सारे मेथड में से, इतने सारी पॉलिसी में से कौन सी स्टैंडर्डाइज पॉलिसी चूज करना, दैट इज ऑलवेज अ डिफिकल्ट। सेकेंड, as may be applied in rigid and inflexible manner, since the demand for standards comes largely from an insatiable appetite of rules and lack of reliance on judgment and technical accounting matters। हर एक बिजनेस का अपना एक खुद का एक कॉम्प्लेक्सिटी होता है, इन सबके सामने एक ही मेथड रिजिडली आप पे थोप देना कई बार मेक्स द अकाउंटिंग मोर टीडियस एंड मोर ऑटोनॉमस। थर्ड, एज ES कैन नॉट ओवरराइड द लॉस ऑफ द लैंड, वो जगह के जो लॉस है, जो स्टैच्यूज है उसके ऊपर नहीं जा सकता, उसको क्रॉस नहीं कर सकता। वेयर देर आर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ES एंड द लॉ, ES में बी पर्पजलेस, दैट मीन्स कि वो स्टैच्यूज को क्रॉस करके अपने आप को नहीं प्रस्थापित कर पाता, तो वहाँ पे ES आर बिकम पर्पजलेस। सो नाउ फ्रेंड्स, दिस इज द लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आपको मॉड्यूल्स में भी मिलेगा। एज ऑफ नाउ ES 29 तक इश्यू हुए, यस अप टू ES 29। ये सिर्फ आपको पढ़ने के लिए, ये आपको लर्न बाय हार्ट नहीं करना है। यहाँ लिखा है द लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गिवन अबव डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द सिलेबस, इट हैज़ बीन गिवन हियर फॉर द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। जो 1 से लेके 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू हुए, पहला है जैसे डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसी, दूसरा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना, कैश फ्लो स्टेटमेंट विच इज़ अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंटीजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट, जो अभी हमने देखा कंटीजेंट असेट्स और लायबिलिटी, ये सब यहाँ पे आपको मिलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 29। दैट इज प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट असेट, जो हमारी यूनिट 5 था, इसका भी पूरा एक डिटेल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैज बीन issued by the ICAI। So friends, this is the small but having a big presence in the CA journey, and at the foundation level it is very introductory part, but at the inter level you will study in the detail। तो उसके MCQ सॉल्व करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इन इंडिया आर इश्यूड बाय, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसको इश्यू करती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या क्या करते हैं? हार्मोनाइज द अकाउंटिंग पॉलिसी, एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी, इंप्रूव द रिलायबिलिटी, या ऑल ऑफ द वो? द आंसर इज ऑल ऑफ द वो। ये सब करती है, एक तो हार्मोनाइज करती है, एक जूट में ले जाती है। नंबर 2, इनके बीच का जितना भी नॉन कंपेरेबिलिटी है उसको निकाल देती है, और इससे रिलायबिलिटी भी बढ़ती है। इट इज एसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी इन ऑर्डर टू ट्रांसपेरेंसी यस, कंसिस्टेंसी यस, कंपेरेबिलिटी यस। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सबके लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूरी है, इसके लिए ही अकाउंटिंग ट्रांसपेरेंट बनता है, कंसिस्टेंट बनता है और कंपेरेबल बनता है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव, जो हमने ऊपर पढ़े अलग अलग उसके ऑब्जेक्टिव्स है, यहाँ पे आप यू कैन हैव द लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एडवांटेजेस क्या है?
तो वो भी हमने देखे कि वो यूनिफॉर्मिलिटी लाता है, नॉन कंपेरेटिव निकालता है, रिलायबिलिटी बढ़ाता है, और सभी फिनेंशियल स्टेटमेंट यू कैन मेक इट कंपेरेबल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वी हैव इंट्रोड्यूस द टॉपिक दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसकी डिटेल बातें यू विल स्टडी एट द इंटरमीडिएट लेवल। सो हियर वी रैप अप विद द यूनिट 8 of the chapter 1 of the that is paper 1 of the CA foundation. Thank you.